Everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this reading is going to be on Abhiya, Abhishek and Jia. What you can know about their relationship, what is going to happen for the coming 2 weeks, prediction hai. Before that, I want to just make a little quick announcement. I cannot do these readings on a weekly basis anymore. My channel is definitely not growing in spite of all the hard work that I have done for the past 1.5 years in bringing this super detailed guidance, explaining you meanings and relationship of each card, how the whole dynamics is unfolding, how things are getting connected, what might be happening at a soul level. I have been stretching myself too much, bringing the readings as per your demand, request, but my channel is stuck. There are absolutely not even 20% like to compare to the views the video receives. There is a total energy deficit that is being created. 2000 लोग वीडियो देखते हैं, 40 लोग उस वीडियो को लाइक करते हैं. आप इमेजिन करिए 1950 लोगों ने जो एनर्जी ली है वीडियो से, वो एनर्जी वापस ही नहीं करते हैं. बस 40 लोग वीडियो को लाइक करते हैं. Can you even imagine what kind of energy deficit is being created? I am paying with my energy to do these readings. Unfortunately, no matter how much I like to bring this guidance for you, I cannot continue to do these readings at the cost of my energy. इतनी detailed readings को बनाने में I have to give energy to my spirit guides. जितना ज़्यादा वीडियो लंबा होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी जाती है. I cannot keep this running at the cost of my energy. मैं बहुत ही I am pushed to the corners to tell all these things. If the video is not being appreciated, if my channel is not growing, if videos you are watching, you are not liking the videos, you are not appreciating the videos, I cannot continue to do these videos at the cost of the burnout. I have to be very honest. If this continues like this, 70% of people who watch the videos, they don't think that they should subscribe to the channel. Ultimately, मुझे ये सारी videos बंद करना पड़ेगा. I'm so sorry, but it is what it is. I have continued to bring this video for 1.5 years based on my energy. मुझे समझ में नहीं आता है जब इतना डिटेल गाइडेंस देने पे, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने पे, एक 1.5 घंटे का वीडियोस बनाने पे कितनी एनर्जी उसमें लगती है. यू पीपल हैव ज़ीरो आइडिया. यू डोंट नो द काइंड ऑफ एफर्ट गोज इन टू ब्रिंगिंग दिस हाई एनर्जेटिक रीडिंग्स, एक्सप्लेनिंग सो मच, एंड दैट टू ऑल्सो ये रीडिंग सब एक्यूरेट होती है. रीडिंग्स जितनी फाइन होती है आपकी उतनी एनर्जी जाती है उसमें. And my audience is not supportive enough. I know people, they make 1 minute का shorts और उनके channel 70,000 80,000 एक साल में subscribers हो गए हैं. I don't have a problems with them. But what is my audience doing? My audience is only demanding ये लाके दो, वो लाके दो, ये detail guidance दो, but you are not helping me grow. How long can I do this based just giving my energy to it? So, unfortunately or fortunate, जो भी बोलिए, मुझे I cannot continue like this. So, I am telling this in all my videos today because I am really tired now. I am going through a burnout. You people don't understand anything. आपको free का guidance मिलता है. You enjoy it, but you have no idea the kind of effort it takes into making these detailed guidance. You have no idea. And let me tell you, what you are not valuing, universe will not let you have that. जिस चीज़ का हम वैल्यू नहीं करते ना एक दिन यूनिवर्स वो चीज़ हमसे छीन ही लेता है. तो that is what it is. And I am fine with that. Trust me, I am a spiritual person. I will never blame anybody. I will take this as universe sign to move forward in my life. So I'm not blaming you, but I'm just letting you know 1-2 months down the line, if I stop doing these readings because of lack of support on the video, lack of growth on my channel, please don't blame me. Please don't ask for the guidance.
God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Abhishek and Jia, for their relationship, for the coming 2 weeks. What is that the fans can know? We thank you so much for the guidance. Abhishek and Jia, what is that you guys can know? All right, the card has gone down. Let me pick this up. ऑल राइट, यहाँ पे क्वीन नाइट ऑफ सोर्ड की कुछ एनर्जी आ रही है। यहाँ पे देखिए रास्ते बंद हो रहे हैं, बंद हैं, और यहाँ पे हम हैंग्ड मैन की पोजीशन में फिर से आ गए हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है। ऑल राइट, व्हाट डू यू सी गाइज? Excuse me. Let's pull the clarifier. देखो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई किसी की तरफ दौड़ के जा रहा है, बट अब किसी के पीछे कोई दौड़ के जा रहा होगा तो कोई ऐसा दिस लुक्स लाइक दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट समथिंग, टॉक टू समबडी, कोई ऑफर लेके जा रहा है या फिर कोई बात करने के लिए जा रहा है। बट हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि रास्ते माने कि ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ नहीं हो पा रहा है। कोई किसी से बात करने तो जा रहा है, पर 3 ऑफ वांड्स का मतलब है आगे बढ़ना। जो शिप आ रही है उसको उसकी राह देखना, बट यहाँ पे कोई आगे बढ़ रहा है, पर आप ऐसा है कि कुछ ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है और हम फिर से स्टक कर गए। इस तरह की कुछ एनर्जी लग रही है उनके रिलेशनशिप में आने वाले 2 हफ्तों में। अभी इसका क्लैरिफायर निकाल के देखते हैं कि हमें और भी कुछ गाइडेंस मिल सकता है क्या। आई थिंक पहले भी कुछ इसी तरह की एनर्जी आ रही थी। आई डोंट नो कब मैंने उनकी रीडिंग की है, बट कुछ इसी तरह का उस समय भी था कि कोई रश करके जा रहा है बातचीत करने। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, but something like that, or I'm not sure if I'm getting confused with other readings. Please have a bigger heart and have some grace and forgive me. Don't pick every small thing that I tell. Go to the, बोलते हैं ना जैसे कि भावनाओं पे जाओ, तो go to the crux of the reading. Don't pick one word here and there and make a hill out of a mole. Grow up, grow up. वैसे तो अभिया वाले इतना नहीं करते हैं, बट एनीवेज मैं सबको भाषण दे देती हूँ। चलिए, कैन वी डियर एंजल्स प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर दीज कार्ड्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है। ऑल राइट, वॉर ऑफ वर्ड्स, हु नोज। यस, आगे बढ़ने में हम झिझक रहे हैं, सोच रहे हैं। एंड यस यस यस, वाओ, डू यू सी दिस? एक तरफ क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, एक तरफ किंग ऑफ सोर्ड रिवर्स में है। सोर्ड्स एंड सोर्ड्स, थॉट्स एंड थॉट्स, कम्युनिकेशन, वर्ड्स, ये सारी चीजें ही एक्सचेंज हो रही हैं। ऑल राइट, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो क्लियरली देखो, यहाँ पे सोर्ड 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 सोर्ड, माने सब तरफ बातचीत, थॉट्स, कम्युनिकेशन, यही सब चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई इंसान, अगर अभिषेक जिया की आप बात कर लें तो कोई किसी से बात करने के लिए जा रहा है। अब कौन किसी से बात करने जा रहा है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ, कोई रश करके बात करने के लिए जा रहा है। बात करने, आप जिस तरह से स्पीड से बात करने जा रहे हो, आप कुछ इंटेंशंस के साथ जा रहे हो, कुछ ब्रेक थ्रू को एक्सपेक्ट करके आप इतने जोर से जा रहे हैं ना, वहां पे ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है। आप आगे 3 ऑफ वांड्स आगे नहीं, 3 ऑफ वांड्स आगे बढ़ने का कार्ड। कोई शिप बैठी हुई है, उसको उसकी राह देखना, उस पर चढ़ जाना। लेकिन यहाँ पे जो आगे बढ़ रहा है, आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे, ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं ब्रेक थ्रू हो पा रहा है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा कोई सोच रहा है। इस ब्रेक बातचीत जो हो रही है ना, देखो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड बात करने गया है, यहाँ पे भी ये पेज ऑफ सोर्ड तलवार लेके ही बैठा है, यानी कि ये बात करने गया है तो इस पेज ऑफ सोर्ड के पास भी बातें हैं वो बताने के लिए। एक चीज जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नाइट ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है, यानी कि एक पेज है, एक नाइट है। तो पेज आप बोल सकते हैं कि थोड़ा इमेच्योर डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि ये पेज है, ये नाइट है। तो एक जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी ना, तो दे आर नॉट एट द सेम वेवलेंथ, ऐसा भी मैं पिक कर रही हूँ।
प्लस यहाँ पे नाइट क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स में है। अगर क्वीन ऑफ सोर्ड ऐसे होती तो शी इज फाइन विथ व्हाट, देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पास्ट की कुछ चीज़ों पे बात हो रही है, रिलेशनशिप के पास्ट के रिलेटेड हो सकता है कि मान लेते कि ये बंदा ही ये है कि जा रहा है इसके पास, पास्ट में जो रिलेशनशिप अच्छी थी उससे रिलेटेड कुछ बात करने जा रहा है। तो ये जो है ये हो सकता है कि पेज के मूड में होगी कि ये भी बात करने के लिए तैयार है, बट शी इज़ मोर लाइक ये उसके साथ चार्ज कर रहा है, शी इज़ मोर डिफेंसिव। बैक ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स में आ गई है। क्वीन ऑफ सोर्ड जब ऐसी रहती है तो हालांकि वो बहुत बोल्ड रहती है, शी थिंक्स फ्रॉम हर हार्ट, शी थिंक्स फ्रॉम हर माइंड, लेकिन वो दूसरों की बात सुनती है। क्वीन ऑफ सोर्ड जो होती है ना, वो हालांकि वो अपनी ही डिसीजंस लेती है, दिमाग से डिसीजंस लेती है, इमोशंस में नहीं आती है, बट शी इज ऑल्सो समबडी हु लिसन्स टू अदर पर्सन। यहाँ पे मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि ये कुछ बात करने के लिए कोई जा रहा है, पास्ट के अपने जो रिलेशनशिप थे अच्छे उसके पे जा रहा है। यहाँ पे वो बैक कर दिया है उसने, बैक ऑफ द डेक का कार्ड भी है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। शी इज नॉट ओपन टू रिसीविंग व्हाट दिस पर्सन हैज टू से, ऐसा मुझे लगता है। बिसाइड्स मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो भी बोलेगा ना ये उसको काउंटर करेगी, ये भी लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक तरह का डेडलॉक क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्योंकि ये डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, ये इंटेंशन था कि क्योंकि ये रेड कलर ये पहना हुआ है, ये रेड कलर ये है इसका, तो ये जो इंटेंशन क्रिएट करके कुछ ब्रेक थ्रू शायद ये करना चाह रहा होगा, या कोई भी ये नाइट ऑफ सोर्ड जो करना चाह रहा है कुछ ब्रेक थ्रू। यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है, आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सोच में चिंता में पड़े हुए हैं, है ना। आप बहुत सोच में पड़े हुए हो, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए नहीं, और क्योंकि आपने सोच विचार करके आगे नहीं बढ़े हो तो आप हैंग्ड मैन के पोजीशन में हो। तो रिलेशनशिप अभी भी हैंग्ड मैन के पोजीशन में है, और यहाँ पे कुछ फैमिली की अभी एंगल आ गया है, ठीक है। तो यही मोटा मोटा तो आप यही समझ सकते हो कि यस, चीज़ों पे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर यहाँ पे शी इज़ नॉट ओपन टू रिसीविंग टॉक एंड ऑल, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। यस, हर्मिट मोड में जाके फिर सोच रहे हो, बात करना चाह रहे हो, बात बढ़ नहीं रहा है, हैंग्ड मैन पे हो गया, ऑब्वियसली फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो ये सब चीज़ें। चलो ठीक है, हम देखते हैं बंदे का गाइडेंस। सबके रीडिंग में स्ट्रेस आ रहा है। आई हैव डन रीडिंग फॉर सुम्बुल, फामान एंड मुनारा सो फार। हर एक के कार्ड के पीछे स्ट्रेस आ रहा है, बैक ऑफ द डेक में स्ट्रेस आ रहा है, यानी कि हर लोगों को सिचुएशन से स्ट्रेस है, पर वो लोग दिखा नहीं रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं है। बंदे का कार्ड जिया के लिए क्या है? अभिषेक गाइडेंस कमिंग फॉर अभिषेक फॉर जिया। गाइडेंस, यस, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल। अभिषेक को बोला जा रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। बीइंग ओवर कंट्रोलिंग कैन सैबोटैज द रिलेशनशिप, या आप जिस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जा रहे हो, यहाँ पे देखो, आप जिस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जा रहे हो, अगर आप उसको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, प्लस वो खराब भी हो सकती हैं चीज़ें। Being over controlling and can sabotage your relationship. To more effectively achieve your goal, back off, regroup, give the situation some breathing space and room. Yeah, मैंने कि नहीं कोशिश करना है कि एकदम ठीक हो जाए। All right, you get it, right? चलो ठीक है। Guidance coming for Jia, for the guy Abhishek. What is that you can know, guys? What you can know? Yeah, playtime क्यों आया है इसको? This card is coming from nowhere to anyways. यहाँ पे देखते हैं guidance coming for Jia, for Abhishek. नेगेटिव थॉट्स हैं इसके। यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। व्हेन नेगेटिव थॉट्स सरफेस, से थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड क्विकली फोकस ऑन द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, अभिषेक को बोला जाएगा कि यू कैन नॉट कंट्रोल एंड मेक थिंग्स रियली वर्क फास्ट। मे बी वो चाहता है कि, जैसे हम बोल रहे थे ना कि ब्रेक थ्रू के लिए रश कर रहे हो आप,
Exactly. You cannot rush and make things happen. You understand? This Knight of Sword, yes, he's passionate, he's focused, he gets the thing done. मगर इसमें एक हड़बड़ी वाली एनर्जी भी आती है, तो आप हड़बड़ी के से तो चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हो ना. आप तलवार लेके दौड़ोगे तो ये भी इंसान तलवार उठा लेगा, तो वो चीज़ है. और बिसाइड्स ये क्या है कि ये इसका नेगेटिव थॉट्स है, तो यहाँ पे सोच विचार भी इसीलिए हो रहा है. तो या आई होप दैट दैट हेल्प्स यू. दोनों के ही बैक ऑफ द डेक में वंडर, सरेंडर टू योर वंडर एंड ऑल, दोनों का ही, इसका भी यही था, इसका भी यही आ रहा है. तो पढ़ देती हूँ इन दोनों का. Open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all of the lives. The attitude will keep you connected to the ecstasy of love. तो बेसिकली बोला गया है कि like enjoy life, rather than enjoy life, take life with a pinch of salt and value small things in life instead of getting really stubborn about something, rigid about something. Cherish small moments, cherish the relationship instead of always focusing कि मुझे ये चाहिए, उसको ये चाहिए and all that. इस चीज़ में क्या होता है कि हम खो जाते हैं, हम रिलेशनशिप को वो वैल्यू नहीं कर पाते. इसीलिए शायद ये वाला प्ले कार्ड आउट ऑफ द ब्लूज आया है इन दोनों के लिए. Excuse me. The dolphin knows the importance of playing as joy creates miracles and manifestations. तो क्या ये दोनों अपने प्रॉब्लम्स में ही उलझे हैं और चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पर अपने प्रॉब्लम में इतना उलझे हुए हैं, सोचते, ओवर थिंकिंग हो रही है कि प्रॉब्लम नहीं है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. लाइक बोथ ऑफ देम आर कि ये होगा तभी हम रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे. इज इट रियली नेसेसरी कि ये हो तभी आप रिलेशनशिप में हो? यू कैन बी फ्रेंड्स, यू कैन एंजॉय द लिटिल केयर दैट बोथ ऑफ यू डू फॉर ईच अदर. द रिलेशनशिप इज ब्यूटिफुल. ये सब चीज़ यूनिवर्स बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ. इसीलिए उन दोनों को ही बोला जा रहा है कि प्ले टाइम करो, माने कि लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों को, ये रिलेशनशिप है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा हस्बैंड ही बने, ये मेरी वाइफ ही बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर वो नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, लेकिन just because that will not happen, do you have to spoil this little thing that you have? ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो यही इसीलिए बोला जा रहा है कि प्ले टाइम करो. तुम लोग अपने डीमंस में ज़्यादा ही उलझते जा रहे हो. यहाँ पे देखो हर्मिट मोड में ये उलझती जा रही है, ये चीज़ों को रश करके ये, तो ये सब अननेसेसरी हो रहा है. सो गेट सॉर्टेड, ये चीज़ है. एनीवेज, चलो अब आगे का कार्ड देख लेते हैं दोनों का. Guidance coming for the guy, for the girl. Okay. Consult an expert. More information is needed. Contact someone with expertise in this area. शायद यहाँ पे कुछ जल्दबाजी भी कर रहा है, तो शायद उसे बोला, maybe some friend can tell how to handle. Maybe he doesn't know how to handle this situation. क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंट्रोलिंग. हालांकि वो देखो, वो इंटेंशन तो अच्छे से, इंटेंशन से ही दौड़ के जा रहा है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए. 6 ऑफ कप की सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना चाहता है. अपनी जो रिलेशनशिप इनकी पास्ट की अच्छी थी उसको सॉर्ट आउट करने जा रहा है. बट मे बी sometimes, or rather most of the times, most of us don't know how to. We all want to have a good relationship. हम रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, पर हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि रिलेशनशिप और बिगड़ जाता है. यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए मे बी ही वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स हैपन, बट ये कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोलिंग हो जाता है. तो इसको बोला जा रहा है कि मे बी you don't know how to deal with it, so take a expert का help, friend का help ले लो जो इस तरह के situation में है. They can tell you how a girl behaves, how a girl feels, so give a space, that kind of thing. You understand? तो intention सही है, पर हमको समझ नहीं आ रहा है, हम थोड़े rigid हो जा रहे हैं, या फिर हम control कर रहे हैं according to the cards. तो वो चीज़ें हैं. फादर हीलिंग का कार्ड आया है. तो फादर हीलिंग लोग बोलते हैं, जिया का कुछ फादर हीलिंग का है कार्ड. तो यहाँ पे बेसिकली शायद यही बोला जा रहा है कि बिकॉज जिया हैज़ सम फादर हीलिंग इश्यूज अपने फादर से, जो भी है आई डोंट नो, बट एज पीपल से, तो प्रॉब्ली ही नीड्स टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग या गिव स्पेस फॉर हर थिंग. एंड जिया प्रॉब्ली ऑल्सो नीड्स टू काइंड ऑफ हर चीज़ को नेगेटिव, क्योंकि फादर के साथ कुछ हुआ है कि क्या पता नहीं है, बट शी डजंट हैज़ टू सी एवरीथिंग फ्रॉम दैट एंगल. While this person has to give her space because of her own things that she is dealing with, she also
हर लोगों को उसी एंगल से नहीं देखना है, दोनों को ही देखो रिलेशनशिप में इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। एक ही इंसान इम्प्रूव करेगा तो काम नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। अब जिया के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है लड़के के लिए, या स्टे ऑप्टिमिस्टिक बोला जा रहा है इसको। Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle. ये नेगेटिव थिंकिंग, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही तो है ना। वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग कर रही है इसको लेके ना, बिकॉज ऑफ फादर हीलिंग इश्यूज एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ें हैं। ऑल राइट, लेट मी सी इफ आई कैन गिव यू कि क्या मैजिक इन दोनों को टैप इन करनी चाहिए अपने रिलेशनशिप में। एक तो देखो प्ले टाइम करना चाहिए, अननेसेसरीली ओवर पास्ट को प्रेजेंट में ला के प्रॉब्लम कर रहे हो तुम लोग। गाइडेंस कमिंग फॉर बोथ ऑफ देम। सो आने वाले 2 हफ्ते में यू कैन सी समबडी मेकिंग एडवांसमेंट टू मेक थिंग्स वर्क, बट वो सैबोटैज कर सकता है रिलेशनशिप को इफ इट बिकम्स टू काइंड ऑफ कंट्रोलिंग। Thank you, dear angels, for the blessings and guidance coming for Abhishek and Jia for their relationship. Yeah, the world awaits you. What is the problem? ये वाला guidance फामान के लिए भी आया है इस week, and the message is that you are becoming very mechanical in the way you are leading your life. And क्योंकि हम इनकी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये अपने रिलेशनशिप में ना बहुत मैकेनिकल हो गए हैं कि ये होगा तभी होगा। मैकेनिक्स क्या होता है कि ये चीज़, ये पुर्जा काम करता है तो ये पुर्जा काम करेगा, ये सेंस करता है तो दे आर बिकमिंग वेरी लॉजिकल, वेरी फिक्स्ड आइडिया से ये रिलेशनशिप को अप्रोच कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है कि अपनी जो ये रिलेशनशिप की जो फ्रेग्रेंस है, सी it's almost like you have expectations from the relationship and it's okay, but अब क्या हो गया कि इन दोनों की एक्सपेक्टेशन इतनी हार्ड एंड फास्ट हो गई है कि रिलेशनशिप इज डाइंग। तो द थिंग इज you have come to a position where if I get this, then this works or it doesn't work. So what is basically happening? The relationship is dying. तो जिद किस चीज की है? I mean, आप basically either I want 100% or I don't want anything. In that way, the relationship is going to go through the docks. तो इस प्रोसेस में बेसिकली बोला जा रहा है कि the morning awaits you. You are becoming very mechanical. आपकी लाइफ को आप बहुत ही एक रोबोटिक बना दिए हो, इस रिश्ते को रोबोटिक बना दिए हो कि ये मिलेगा तो ये हो तो। अरे भाई, रिलेशनशिप is not about wanting what we want. Its relationship is always mostly, if we go on a bigger picture, it is about giving rather than taking. तो वो चीज मैं बता रही हूँ. So they are just forgetting the essence of the relationship और कुछ और ही चीजों में उलझ गए हैं ये लोग. And the morning awaits you is all about, start living your life. Like you can be happy for some other people. Finding happiness in the relationship itself, irrespective of what shape you want to give to the relationship. You understand? Deeper stuffs, I don't know if you are understanding, but this is what it is. If you want me to read the message from the card, if you can understand that better, let me read this for you. 40 का कार्ड है. ये लोग बहुत ही माने कि बोलते हैं ना कि जैसे कि चीज़ों में, अननेसेसरी चीज़ों में उलझ गए हैं और उसके कारण जो ये रिलेशनशिप है ना वो विदर हो रहा है. एंड इट ऑनेस्टली मेक्स नो सेंस. You have been alive, sure. You have been waking up, doing what you need to go through your day, going back to sleep, repeat. Have you been living though? Truly living? I think you need to hear this now more than ever. Your life is incredibly precious out there. The world awaits you. Now is the time to make good moments and learn to treasure them as they come. यानी कि भाई रिलेशनशिप में तुम लोगों ने इतना एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के लिए डाल दिया है ना कि रिलेशनशिप ही मर रहा है.
तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस का फ़ायदा क्या है? इससे तो अच्छा दोस्त बन के खुशी रहो, वही अच्छा है. यू अंडरस्टैंड दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो आई होप दैट दिस हेल्प्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. क्योंकि यहाँ पे देखो टू मच ऑफ चिंतन मनन है यहाँ पे फिर स्टक ही हो गए हो, फ़ायदा क्या है? So I hope this helps you, and if you like the guidance, please like, share and subscribe if you want me to continue to bring these videos. Otherwise it is definitely not possible for me to do it. Okay, thanks and see you again.